Hello students, welcome in the physics class. Today we will solve the questions of NCERT exercise of chapter 4. That is, the chapter is moving charges and magnetism. So some questions you have solved. We will start with the remaining questions. हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, that is question number 4.5. 4.1 you have solved, 4.2 you have solved, 4.3 also, 4.4 also. We are going to start with the question number 4.5. It is given that what is the magnitude of the magnetic force per unit length of a wire carrying a current of 8 ampere. हमारे पास कितना करंट दे रखा है? That is a 8 ampere. 8 ampere and making angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field. थीटा आपके पास कितना दे दिया? 30 degree with the direction of uniform magnetic field. Magnetic field is given, that is 0.15 Tesla. We have to find out the force per unit length of the wire. So force per unit length की बात करें, देखो हमें पता है that the force on a straight wire in the magnetic field that is given by F is equal to I L B sine of theta. But we have to find out force per unit length. So force per unit length, that is F upon L is equal to I B sine of theta. So substitute the values. This value, that is I is 8 ampere, B is 0.15 and sine of 30 degree. So that is 8 into 0.15 into 1 by 2. 2 से बिटाइएगा, कैंसिल आउट हो गया. So that is 4 into 0.15. So this is 0.6 Newton per meter. This is force per unit length. Therefore, this answer that the unit of the force per unit length, that is a Newton per meter. Newton is the unit of force and meter is the unit of length. So the force per unit length, that is a 0.6 Newton per meter के बराबर हमारे पास आ गया. नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.6 की बात करते हैं हम लोग. This is question number 4.6. 4.6 में बोला गया है 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. What is the magnetic field inside the solenoid? The magnetic field inside the solenoid is given 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? फिर से वही बात आ गई. लेंथ हमारे पास दी गई कितनी? 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर मीन्स 3 into 10⁻⁻2 मीटर. ये हमारे पास लेंथ दी गई है. And carries a current of 10 ampere. It carries a current of 10 ampere perpendicular to the direction of the magnetic field in the solenoid, and magnetic field that is given 0.27 Tesla. We have to find out the force. In this case, the wire is placed perpendicular, therefore theta that is equal to 90 degrees. So force F is equal to I L B sine of 90 degree. So F is equal to I L B. F is equal to I आपके पास कितना बटा 10, लेंथ है 3 into 10⁻⁻2 और B आपके पास कितना होगा? That is a 0.27. This one. So ये हमारे पास कितना आ गया? That is F is equal to 0.81. ये आपके पास 27 से 81 आते हैं, तो ये 0.81 into 10⁻⁻ आपके पास कितना आ गया? That is a -1. तो हम लोग इसको बोल सकते हैं F is equal to 8.1 into 10⁻⁻2 न्यूटन के बराबर हमारे पास आ गया ये फोर्स. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.6. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.7. 4.7 two long parallel straight wires A and B carrying a current of 8 ampere and 5 ampere. 4.7 पहले का करंट है आपके पास कितना? I1 that is equal to 8 ampere, I2 that is equal to 5 ampere. ये हमारे पास करंट जो है वो कैरी कर रहा है. ठीक है, 8 ampere
इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो गई सेम आपके पास, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मींस आर आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन a 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, मतलब ए के लिए आपके पास कितना रखा है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻1 मीटर। ये हमारे पास इसके ऊपर निकालना है। हमें पता है दैट फोर्स बिटवीन द टू, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो इतना रहता है आपके पास μ0/4/2 I1 I2 r, लेकिन ये हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने निकालना है कि लेंथ के ऊपर तो लेंथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी किसके बराबर L1। सो दिस वन F दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 2 × I1 8 I2 आपके पास 5 अपॉन R हमारे पास है 4 × 10⁻², और L1 आपके पास कितना है 10⁻⁻1 हमारे पास ये दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग 4 × 8 हमारे पास आ गया, सो 5 4 से 20, F इज इक्वल टू 20 इंटू दिस इज 10 पावर कितना आ गया आपके पास -8 × 10⁻², आपके पास ऊपर चला गया। सो दिस कम्स आउट टू बी F इज इक्वल टू 20 × 10⁻⁻6 और F इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन के बराबर हमारे पास है फोर्स आ गया। अब क्योंकि फोर्स जो है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, सो नेचर ऑफ द फोर्स दैट इज अट्रैक्टिव। कैसा आएगा आपके पास अट्रैक्टिव, इट मींस दैट इट इज टुवर्ड्स वायर बी की तरफ आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4.7। हम लोग बात करते हैं किसकी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.8। ध्यान दें, अच्छा 4.8 हम लोगों ने कर लिया था, हम लोग बात करेंगे किसकी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.9। 4.8 previously we have solved. So question number 4.9, की बात करते हैं हम लोग। यहाँ से दे रखा है हमारे पास a square coil of side 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere। साइड दे रखी है कॉइल की हमारे पास दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉइल है, तो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। इसका एरिया अगर मैं निकालूं दैन इट इज ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर के बराबर हमारे पास आ गया। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितना आ गया 20, एंड द कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पीयर, करंट आपका सॉरी कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पीयर, ये हमारे पास 12 एम्पीयर का इसमें क्या आ गया करंट आ गया स्क्वायर कॉइल में। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस अल्फा दे रखा है आपके पास, नॉर्मल बना रही है किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.8 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमें पता है दैट इज इक्वल टू NIAB sin ऑफ अल्फा, दैट्स वन। ठीक है, सो दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू n कितना बेटा 20, I आपके पास 12, एरिया आपके पास 10⁻⁻2, B 0.8 एंड दिस इज sin ऑफ 30 डिग्री। ये हमारे पास है। सो दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे हम लोग, चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 2 × 12 इंटू 0.8 और ये आपके पास आ गया 10⁻⁻1, इससे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने S0 से, यहाँ एक चला गया हमारे पास इंटू sin ऑफ 30 1/2। सो इस 2 से आपके पास ये कैंसिल आउट, 12 8 96 आपके पास आते हैं। सो दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁻1 आपके पास, और टॉर्क दैट इज इक्वल टू 0.96 न्यूटन मीटर के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वन इज व्हाट दैट इज अ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.10 की बात करते हैं।
इसमें बोला गया है दैट टू कॉइल्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है R1 दैट इज इक्वल टू 10 ओम, देन N1 दैट इज इक्वल टू 30, ये हमारे पास है। और उसके बाद A1 एरिया इसका आपके पास A1 दैट इज गिवन 3.6 इनटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर एंड V1 दैट इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला। दूसरे के लिए क्या रखा है R2 दैट इज गिवन 14 ओम, N2 that is given 42 and A2 that is area of second coil that is given 1.8 10 raised power minus 3 meter square and B2 that is given 0.50 Tesla। ये हमारे पास है। The spring constants are identical for the 2 meters. The value of K that is constant, ठीक है। Restoring torque per unit twist that is same. Determine the ratio of the current sensitivity and voltage sensitivity of M2 and M1। करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं हम लोग। पहली बात करें हम लोग करंट सेंसिटिविटी की रेशियो निकालनी है तो हम लोग निकालेंगे दैट इज IS2 over IS1। करंट सेंसिटिविटी हम लोगों ने निकाली थी उस टाइम दैट इज MAB upon K। तो ये N1 A1 B सॉरी दिस वन इज सेकंड की बात कर रहे थे हम लोग N2 B A2 B2 अपॉन K अपॉन N1 A1 B1 ओवर K। K से बेटा K कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बच गया किसके बराबर दैट इज N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 B1 के बराबर। सो दिस रेशियो दैट इज N2 की बात करें हम लोग 42, एरिया इसका था आपके पास 1.8 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3, B2 हमारे पास 0.50 डिवाइडेड बाय N1 दैट इज 30, देन A1 की बात करें 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 और दिस इज 0.25। तो ये तो बेटा आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 18 2 36 हमारे पास आ गया और यहाँ से ये 2 हमारे पास चले गए, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज दैट विथ 4.2 डिवाइडेड बाय 3 इस 30 से कर दिया, सो दैट इज 1.4 के बराबर हमारे पास आ गया, ठीक है। 1.4 रेशो 1 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख दिया 1.4 के बराबर। दूसरा हमारे पास पूछा गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी VS2 ओवर VS1 दैट इज इक्वल टू IS ओवर R2 आपके पास आ जाएगा IS2 ओवर R2 और IS1 ओवर R1। ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, ठीक है। यही आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज IS अपॉन R के बराबर। सो this is equal to VS2 over VS1 that is equal to IS2 over IS1 into R1 over R2। ये रेशो हमने निकाल रखी है जैसा IS2 over IS1 that is equal to 1.4 के बराबर थी, so that is 1.4 into R1 निकाल कर देखें हम लोग तो R1 is equal to 10 और R2 that is equal to 14, yes 14। तो ये हमारे पास कितना बचेगा दैट इज 14 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी की रेशियो ये आ गई और वोल्टेज सेंसिटिविटी की रेशियो आपके पास ये वाली आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग दैट इज 4.11। 4.11 की बात करें तो उसमें क्या बोला गया है दैट इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस, डी आपके पास लिखा है 6.5 गॉस, इट मींस दैट इज इक्वल टू 6.5 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला, ठीक है। इज मेंटेन एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 4.8 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है 4.8 into 10 raised
6 मीटर पर सेकंड के साथ इलेक्ट्रॉन हो गया शॉर्ट कट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट मींस थीटा is equal to 90 degree. Explain why the path of the electron is a circular path. Determine the radius of the circular orbit. It is given that the charge of the electron 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb and mass of the electron that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम. हमने पहले ये प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास दैट मोस्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द जब ये करके एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली देन इट डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ दिस वी हैव टू प्रूव. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग और दूसरी बात हम लोगों ने क्या निकाली यहाँ से वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. रेडियस हम लोगों ने यहाँ से निकाल के चल दिया. तो हमें पता है कि दैट द यहाँ पर चार्ज E के बराबर है. So the force on the electron F that is equal to Q V cross B, that is F is equal to E V cross B के बराबर हमारे पास आ गया. So this F that is equal to E V B sin of 90 degree. So this F that is equal to E V B that is maximum value आपके पास है. Now the direction of the force that is perpendicular to B and V, therefore it does not perform any work. Hence the magnitude of the velocity that remains a constant. So it will keep on moving with the same speed, but due to this force, the direction of the motion of the electron that is changed. Hence it describes the circular path in the magnetic field. Now the centripetal force required for the revolution of the electron is provided by the magnetic force. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं हमारा दैट एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया दैट इज इक्वल टू ई वी डी. इस v से बटा ये वी कैंसल नॉट सो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन ई डी. हम लोग क्यू भी लिखते थे तो यही वैल्यू आ गई. क्यू आपके पास सी के बराबर है. मास रख देंगे हम लोग कितना आ गया 9.1 into 10 raised to power minus 31. v की बात करें तो 4.8 into 10 raised to power 6 के बराबर. E आपके पास 1.6 into 10 raised to power minus 19 and this B हमारे पास दे रखा है 6.5 into 10 raised to power minus 4 टेस्ट. ठीक है, अगर ये सारा चीज हम लोग क्या करें सॉल्व करें यहाँ से तो ये हमारे पास आ जाता है इसके बराबर 4.2 into 10 raised to power minus 2. ये आता है आपके पास 4.2 into 10 raised to power minus 2 मीटर के बराबर. और we can say that it is 4.2 सेंटीमीटर की रेडियस जो है ये क्या करेगा डिस्क्राइब करेगा. दूसरी बात और हम लोग इसे अगर अगला पार्ट इसका देखें हम लोग दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.12 इसकी बात कर रहे हैं हम लोग 4.12. इसमें बोला गया है कि आपके पास इन द एक्सरसाइज 4.11 इन दिस क्वेश्चन obtain the frequency of revolution of the electron in the circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron? Explain why. Frequency की बात करें तो frequency आपके पास किसके बराबर आ जाती है nu that is equal to qv upon 2 pi r. ठीक है, अब अगर हम लोग देखें यहाँ से फ्रीक्वेंसी चार्ज है 1.6 into 10 raised to power minus 19. b आपके पास है 6.5 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला 2 into 22 upon 7 into mass 9.1 into 10 raised to power minus 31. ठीक है, इस सारे को अगर हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर ले तो हमारे पास ये रहता है 1.8 into 10 raised to power 7 hertz. So this one is the frequency. ये आपके पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. सॉल्व कर लेना इसको हमारे पास यही आंसर आ जाएगा. अब क्योंकि आपके पास है द फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड ऑन द दिस वन दैट इज द क्यूबी और मास आपके पास चार्ज के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड और मास के ऊपर है बट इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी. वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर कहीं भी नहीं है. सो फ्रॉम द रिलेशन दिस वन द फ्रीक्वेंसी दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यही हम लोगों ने प्रूव करना है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दैट इज 4.13 की बात करते हैं. 4.13 this is
पार्ट की बात की गई है पहले। A circular coil of 30 turns and radius 8 centimeter. Number of turns आ गए 30 और radius आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर, मीन्स दैट इज 8 into 10⁻² मीटर के बराबर हमारे पास रेडियस आ गई। ठीक है। कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, करंट इसमें कितना निकल गया 6 एम्पियर जो है वो करंट कैरी करता है। इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। बी हमारे पास आ गया कितना 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मेक्स एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री with a normal to the coil. It means that this one is alpha, that is given 60 degree. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. तो counter torque की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसका एरिया भी चाहिए हम लोगों को। सो एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इनटू आर स्क्वायर, दैट इज 8 into 10⁻² का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 64 पाई into 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या जाएगा, दिस वन इज द एरिया की बात कर रहे हैं। सो दिस इज, अगर वैल्यू रखेंगे हम लोग, अब टॉर्क की बात की गई है तो टॉर्क काउंटर टॉर्क कितना है लगेगा आपके पास, किसके बराबर है NIAB sin ऑफ अल्फा। एन है आपके पास कितना 30, आई आपके पास करंट 6 एम्पियर, एरिया आपके पास 64 पाई है तो पाई की वैल्यू मैं रख दी 3.14 into 10⁻⁴, और डी आपके पास दे रखा है 1 टेस्ला, और साइन ऑफ कितना आ गया आपके पास, दैट इज 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 30 into 6 into 64 into 3.14 into 10⁻⁴ into √3/2। ठीक है। अगर इस पूरे को हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये आ जाता है 3.1325 न्यूटन मीटर। ठीक है, 3.1325 ऐसा है 1325, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 3.1 न्यूटन मीटर। दिस विल बी द टॉर्क ऑफ द कॉइल। ये क्या है हमारे पास टॉर्क। दूसरी बात क्या बोली गई है हमारे पास, बी पार्ट की बात करें अगर इसमें पूछा गया वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वर रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट इंक्लूजेस द सेम एरिया। नो, आंसर हमारे पास चेंज नहीं होगा बिकॉज द टॉर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप ऑफ द कॉइल। शेप से क्या है, इंडिपेंडेंट है। हम लोगों को सिंपली क्या चाहिए, यहाँ पर एरिया की जरूरत है, तो शेप से आपके पास क्या हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एडिशनल एक्सरसाइज की। एडिशनल एक्सरसाइज में दिस इज 4.14 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 4.14 इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। 4.14 इसमें बोला गया है that two concentric coils x and y of radius 16 cm and 10 cm। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर r y x, और हमारे पास क्या लिखा है रेडियस 16 सेंटीमीटर, मीन्स दैट इज इक्वल टू 16 into 10⁻⁻² मीटर। रेडियस हमारे पास आ गई है, मैं r1 मान लूँ इसको r1, एंड number of turns that is 20 हमारे पास आ गए। number of turns carries a current of 16 ampere। 16 ampere इसमें क्या आ गया, करंट आ गया। और दूसरी कॉइल जो है हमारे पास वो क्या है, कॉइल वाई के लिए बात करें हम लोग, कॉइल वाई R2 that is given 10 सेंटीमीटर, और दैट इज 10 into 10⁻⁻² मीटर। इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको। और यहाँ से N2 की बात करूँ अगर मैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल दैट इज गिवन 25, एंड करंट I2 दैट इज गिवन 18 एम्पीयर। ये करंट है। ठीक है, ये जो कॉइल्स है आपके पास, दीज आर रिस्पेक्टिवली लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कौन से प्लेन में आ गया आपके पास, नॉर्थ एंड
साउथ डायरेक्शन में जो प्लेन है आपके पास उस प्लेन में एक एक करके इनको रख दिए गए हैं, ठीक है। द सेंस ऑफ द करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इन वाई फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट, ठीक है, लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग एट वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ को देख रहा है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को देख रहा है, तो एक्स में जो करंट है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज और वाई में आपके पास कैसे आ रहा है क्लॉकवाइज। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स एट देयर सेंटर, सेंटर के ऊपर हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालना है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, चलते हैं, देखो ये हमारे पास नॉर्थ आता है, दिस वन इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। रेडियस आपके पास कौन सी कॉइल की ज्यादा है, दैट इज आपका एक्स की ज्यादा है, तो हमारे पास ये मैं दो कॉइल बना रहा हूं यहाँ पर, एक एक्स और एक वाई की बात करता हूं मैं, यहाँ पर मैंने बना ली एक्स, और साउथ प्लेन में है आपके पास, और दूसरी आपके पास जो कॉइल है वो कौन सी है, दैट इज कॉइल वाई, दिस वन। ये सेंटर आपके पास आ गया, इस सेंटर के ऊपर क्या करना है हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कॉइल्स की वजह से। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ से, इसमें बोला गया है कोई पर्सन आपके पास जो वेस्ट की तरफ को देख रहा है, तो एक्स में जो करंट है आपके पास दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखेंगे इस साइड को तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगेगी, ये वाला दिस वन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, और दूसरी वाले में जो करंट है आपके पास दैट इज क्लॉकवाइज, ये हमारे पास इसमें, ठीक है। तो ये x है आपके पास, दिस इज कॉइल x एंड दिस वन इज कॉइल y। यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो करंट आपके पास ये आ गया कौन सा I1 और ये किसकी वजह आ गई I2। मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बेटा हम लोग, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं यहाँ से। देखो ये कॉइल है कौन सी वाली, x वाली है, तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से आपके पास Bx आ जाएगा, तो किसके अलावा ईस्ट के अलावा, दिस इज Bx मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बी वाई की बात करूं तो मेरे पास किस साइड को आ रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट, ये हमारे पास आ गया कौन सा, दिस इज बी वाई। कौन सा ज्यादा आएगा कौन सा कम आएगा, ये यहाँ से देखते हैं, पहले निकाल लिया, ठीक है। सो dx दैट इज अलोंग द ईस्ट एंड dy दैट इज अलोंग द वेस्ट की तरफ को आपके पास आ गया। अब चलते हैं यहाँ से, हम पहले निकालते हैं dx, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 अपॉन R1 इनटू 2n पाई 2n1 पाई, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो dx दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 7, I1 हमारे पास कितना है दैट इज 16, R1 हमारे पास कितना है 16 इनटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 इनटू 2 n की बात करें तो आपके पास n1 दैट इज 20 और ये पाई हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा। ये 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, 2 2 4 40 आ गया हमारे पास। सो dx दैट इज इक्वल टू 40 पाई इनटू 10 रेज़ पावर बच जाएगा यहाँ पर -5, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास आ गया फैसला। और मैं लिख सकता हूँ dx दैट इज इक्वल टू 4 पाई इनटू 10 रेज़ पावर -4 फैसला, किस साइड को, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। ये हमारे पास आ गया ईस्ट की तरफ को आ गया। अब अगर मैं दूसरी बात करूं इसकी dy की बात करूं तो dy में निकाल देता हूं dy म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 अपॉन R2 इनटू 2n2 इनटू पाई। सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर -7। I2 की बात करें तो हमारे पास कितना है 18 अपॉन R2 की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 10 इनटू 10 रेज़ पावर -2 इनटू 2 इनटू n2 है हमारे पास 25 और ये पाई, ठीक है। यहाँ से देखें अगर हम लोग तो ये कितना आ गया 25 टू 50, 50 से हम लोगों ने एक जीरो काट दिया तो बच गया 5, 18 5 का 90, सो 90 पाई इनटू 10 रेज़ पावर -5 टेस्ला। और मैं बोल सकता हूँ dy इज इक्वल टू दैट इज 9 पाई इनटू 10 रेज़ पावर -4 टेस्ला। अब ये किस साइड को है आपके पास, दिस इज टुवर्ड्स वेस्ट,
वेस्ट की तरफ को हमारे पास आएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, एट नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B that is equal to By minus Bx, because By that is greater than that of Bx, Bx ये आ रहा था, By आपके पास ये आ रहा है, so this B that is equal to 9 pi into 10 raised to power minus 4 minus this is 4 pi 10 raised to power minus 4, so this B that comes out to be बचेगा हमारे पास कितना 5 pi into 10 raised to power minus 4 टेस्ला, so B that is equal to 5 into 3.14 into 10 raised to power minus 4 टेस्ला, so this B that is equal to 7 और ये 15 10 raised to power minus 4 टेस्ला, और we can say that this B is equal to 1.57 into 10 raised to power minus 3 टेस्ला। That's what ये हमारे पास आ गई। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें हम लोग, then it is towards west, क्योंकि जिस साइड को By आएगा उसी के अलाउंग आएगी आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को आएगी हमारे पास B, ये इस साइड को टुवर्ड्स वेस्ट, जो रिजल्टेंट हमारे पास है। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.17, हम लोग ध्यान से सॉल्व करते हैं। 4.16 हम लोग बाद में करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हम लोग बात कर लेते हैं 4.17। This question that is a toroid has a core non-ferromagnetic of inner radius 25 cm, inner radius में मान लिया R1 that is 25 cm and outer radius that is equal to 26 cm, ये हमारे पास दे रखी है, ठीक है। Around which 3500 turns of the wire are wounded, 3500 turns आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid? Toroid हमारे पास दे रखा है, inside the core of the toroid and in the space around the toroid। ध्यान दें थोड़ा सा, हमने यहाँ से निकालना मीन रेडियस, तो मीन रेडियस दैट इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है आपके पास 51 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर मींस 51/2 into 10 raised to power minus 2 मीटर के बराबर। दिस इज द मीन रेडियस हमारे पास आ गया, ठीक है। ये बात पहली बात की गई है दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड। आउटसाइड हमें पता है दैट आउटसाइड द टोरॉइड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0, आई आपके पास दे रखा है 11 एम्पीयर। सो आउटसाइड द टोरॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। दूसरी बात की गई है इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड हमारे पास क्या है कि दैट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। देखो ये हमारे पास आते हैं B दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n I दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाय L into I। अब लेंथ यहाँ पर देखिए अगर हम लोग, तो लेंथ है इसके बराबर दैट इज इक्वल टू 2 पाई r के बराबर, दिस इज द लेंथ, ये हमारे पास आती है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि r हमारे पास दे रखा है बेटा, मैं लिखूँ B दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट n अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास दे रखे हैं अपॉन 2 पाई r into I। मैं वैल्यू रख दूँ यहाँ पर सभी की, म्यू नॉट 4 पाई into 10 raised to power minus 7, n दे रखा है हमारे पास 3500 अपॉन दिस n, द वैल्यू ऑफ n दैट इज 3500 अपॉन n कितना है आपके पास 2 पाई r, r कितना है 51/2 into 10 raised to power minus 2 और करंट आपके पास है 11 एम्पीयर। तो यहाँ से देखें ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास बच गया B दैट इज इक्वल टू 4 into 10 raised to power minus 7 into 3500 into 11 divided by 51 into 10 raised to power minus 2। इस पूरे को अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके चले तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है दैट इज 3 into 10 raised to power minus 2।
ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर बच जाएगी कुल मिलाकर, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने यहाँ से निकाल देंगे। सो नेक्स्ट वन हमारे पास पूछा गया है कौन सा, सी, दैट इज द एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड बाय द टोरॉइड। एम्प्टी स्पेस की बात की गई है, जैसे ये हमारे पास टोरॉइड था ऐसे और ये हमारे पास आया, एक तो थी यहाँ पर निकालनी थी, ये बीच में हम लोगों ने निकाल दी यहाँ जैसे। अब पूछा गया इस स्पेस में, इसमें भी क्या आता है आपके पास, दैट दिस बी दैट इज इक्वल टू 0। तो इस स्पेस में भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 0। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.18। रीजनिंग है हमारे पास 4.18। It is asked that A part answer the following questions. A में पूछा गया that a magnetic field that varies in a magnitude from point to point but has a constant direction east to west. Direction constant है. Is set up in a chamber. A charged particle enters the chamber and travel undeflected along the straight line path with constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle? ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ गया कि दैट द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज आल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही चला आपके पास। तो इन दिस केस क्योंकि हमारे पास क्या है, B इज पैरेलल टू B, पैरेलल टू B, आइदर दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, बिकॉज इन दिस केस दैट F दैट इज इक्वल टू 0। फोर्स क्या रहा है 0, क्योंकि हमारे पास क्या था F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास यहाँ क्या जाएगा, थीटा इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। सो बी दैट इज द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड वन बी पार्ट, इसमें क्या पूछा गया है, अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी। Would its initial speed equal to the final speed if it suffered no collision with the environment? Yes, the final speed that is equal to initial speed, because the magnetic force that is perpendicular to the direction of a motion, direction of the velocity, hence it does not change the magnitude of the velocity, hence it will keep on moving with the same speed, ठीक है। इससे मूव करेगा सेम स्पीड के साथ, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था। सी पार्ट में गया है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट, कहाँ पर चला है आपके पास, वेस्ट टू ईस्ट। इलेक्ट्रॉन आपके पास में चला है, ये हमारे पास है कौन सा, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट, दिस वन इज वेस्ट। सी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये सी पार्ट है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन कहाँ से चला हुआ है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट। जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास ईस्ट डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन आ गई इससे अपोजिट, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट। करंट हो गया कहाँ से, ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास, ठीक है। Having a uniform electrostatic field in the north to south direction, electrostatic field कहाँ से आ गई, दैट इज द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ध्यान दे थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है दैट इज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इट मींस इस साइड को हमारे पास आ गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपके पास क्या आ गई, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी वजह से इस साइड पर लगेगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मींस आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि दैट इन विच डायरेक्शन दैट स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेट टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। मींस हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स लगना चाहिए इसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इस साइड पर लगना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब देखो लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे हम लोग, करंट की डायरेक्शन आगे बेटा किस साइड को, ये हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास आ गया। जो फोर्स है वो फोर्स किस साइड को होना चाहिए आपके पास, दैट शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस साइड को होना चाहिए आपके पास मैग्नेटिक। तो थंब ये जो फोर फिंगर है दैट एंटर्स इनटू द पेज, इट मींस आपके पास ये क्या है, दैट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होनी चाहिए इस रीजन में, दैट इज
वर्टिकल डाउनवर्ड, ऐसे आपके पास आना चाहिए। ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, दैट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड, ऐसे लगानी पड़ेगी आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.21 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4.21 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि दैट अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर, लेंथ दे रखी है रॉड की कितनी 0.45 मीटर, दिस वन, एंड मास 60 ग्राम, मास हमारे पास दे रखा है इसका 60 ग्राम। इट मींस दैट इज 16 into 10 raised to power minus 3 kilogram, और we can say that 6 into 10 raised to power minus 2 kilogram। ये हमारे पास इसका क्या दे दिया, मास दे दिया गया है। ठीक है, is suspended by two vertical wires at its ends. The current of 5 ampere is set up in the rod through the wires. कितना है आपके पास करंट जो है आपके पास कितना किया गया बेटा, दैट इज 5 ampere, ये हमारे पास सेट कर दिया गया। ठीक है, what is the magnetic field should be set up normal to the current in order that the tension in the wire is a 0। ध्यान दें आप लोग, यहां से बात करते हैं हम लोग। देखो ये हमारे पास आ गया रॉड, मैंने ऐसे मान it is suspended by means of the two wires। एक वायर यहाँ पर है और एक वायर यहाँ पर है हमारे पास, ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि ये जो है आपके पास क्या रहना चाहिए, इसमें करंट फ्लो कर गया कितना का 5 एम्पियर का कर गया, और लेंथ इसकी दे रखी है 0.45 मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट शुड बी सेट अप नॉर्मल टू द कंडक्टर in order that the tension in the wire is 0। अब हमें पता है कि दैट वेट ऑन द वायर, वायर के ऊपर अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट दैट वर्टिकल डाउन, ये हमारे पास है, इसका वेट की बात करूं तो हमारे पास आएगा इससे mg। तो वेट 0 कब होगा, जब हमारे पास रहेगा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस साइड पर आएगा, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, दैट बैलेंसेस द वेट। ये वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा हमारे पास। ठीक है, तो फोर्स हम लोग अगर बात करते चले यहाँ पर कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए कि दैट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लगा दी इस साइड को लगा दी, हम लोगों ने परपेंडिकुलरली लगा दी, फोर्स ऊपर की तरफ, अगर करंट आपके पास किस साइड पर आना चाहिए, ये बाहर की तरफ, तो ये करंट हमारे पास आ गया ऐसे। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें क्या आ गया आपके पास, ये डायरेक्शन आ गई करंट की, तो फोर्स हमारे पास ऐसा आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इसके क्या परपेंडिकुलरली नॉर्मली ऐसे आपके पास मैग्नेटिक। अब क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड का, ताकि ये क्या हो जाए, द टेंशन इज अ 0। टेंशन 0 का मतलब क्या हो गया बेटा आपके पास कि डेटा द वेट इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। सो इन दिस केस दैट इज Fm दैट इज इक्वल टू mg के बराबर, सो दैट इज I and B, क्योंकि नॉर्मली रखी गई है तो थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो sin ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 mg। D हम लोगों ने निकालना है तो mg अपॉन I into L के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड D दैट इज इक्वल टू मास कितना है 6 into 10 raised to power minus 2, G आपके पास 9.8, बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, I आपके पास 5 एम्पियर है और लेंथ आपके पास है 0.45। सो दिस कम्स आउट टू बी D दैट इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं यहां से ये 45 से 10 raised to power minus 2, देखो यहां से 10 raised to power 2 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया कितना 48 अपॉन दिस वन 225 टेस्ला। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास एक इसके बराबर आता है दैट इज 0.26 टेस्ला नॉर्मल टू दिस वन। अब दूसरी बात क्या बोली गई हमारे कि अगर मान लो इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, मान लो ये डायरेक्शन जो है हम लोगों ने क्या कर दी इसकी रिवर्स कर दी, करंट को रिवर्स कर दिया मतलब ऐसे कर दिया हम लोगों ने, ये
देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कैसे है आपके पास। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज, तो मैग्नेटिक फोर्स भी किस साइड को लग गया था, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द टेंशन इन द वायर, तो टेंशन आ जाएगी इसके दिस फोर्स प्लस दिस वेट, वही उसको क्या करेगी, बैलेंस करेगी। तो टेंशन दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज Fm प्लस mg के बराबर हमारे पास आ गई। T दैट इज इक्वल टू ILB प्लस mg। सो T I आपके पास कितना है, I दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, लेंथ 0.45, B आपके पास 0.26 निकाल दिया हम लोगों ने, प्लस यहाँ से इसमें जोड़ दें हम लोग कितना, दैट इज 6 × 10⁻⁻² इंटू 9.8 के बराबर। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको बेटा सॉल्व कर ले तो हमारे पास ये इसके बराबर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 58.5 × 10⁻², और प्लस यहाँ से देखें अगर हम लोग तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, दैट 58.8 10⁻²। तो इसको अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ गई इसके बराबर, दैट इज 117.3 इंटू 10⁻² न्यूटन, या हम लोग बोल सकते हैं 1.173 न्यूटन के बराबर, या फिर 1.2 न्यूटन के बराबर हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, सो 117 था ये, 117, तो 117.3, हाँ ठीक है, आपके पास 117.3 आपके पास आ गया इंटू 10⁻² की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.22 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 4.22 हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर। 4.22 बोलता है हमारे पास, द वायर विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टुवर्ड्स अ स्टार्टिंग मोटर carry a current of 300 ampere short है। What is the force per unit length between the wires if they are 70 cm long and 1.5 cm apart? Is the force attractive or repulsive? देखो दो वायर हमारे पास बेटा ऐसे चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, जैसे कनेक्ट होते हैं, एक में करंट ऐसे आ रहा है तो दूसरे में ऐसे आएगा फ्लो करके, जैसे सर्किट यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट इज अपोजिट इन द टू पैरेलल वायर। तो यहाँ क्या देखते हैं आपके पास हर किसी में करंट कितना आ गया, I1 इज इक्वल टू I2, जितना इसमें है 300 एम्पियर उतना इसमें आएगा, तो I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू 300 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटा, फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो हमारे पास सेपरेशन ले रखी है 1.5 सेंटीमीटर की, इनके बीच की 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो इट मींस दैट इज 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, या मैं इसको बोल सकता हूँ 15 इंटू 10⁻³ मीटर अपार्ट हमारे पास आ गया। हमने निकाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये भी बताना है इज द फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स इज गिवन बाय μ0/4π2 I1 I2 अपॉन R के बराबर हमारे पास आता है। सो दिस दैट इज इक्वल टू μ0/4π 10⁻⁷ 2 इंटू 300 अपॉन R हमारे पास किसके बराबर है, 15 इंटू 10⁻³ सो यहाँ से देखें अगर हम लोग 15 टू 30 आता है तो ये हो गया 20 हमारे पास। सो दैट इज F is equal to 2 to 4, 3 is 12, 10⁻⁷ into यहाँ से बच गए 1 2 3 10⁻³
और यहाँ से 10⁻³ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके पास, ऊपर चला जाएगा आपके पास। सो दैट इज F इज इक्वल टू 8⁻⁶ माइनस 7 10⁻⁻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 ⁻
दैट इज इक्वल टू 1.2 न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स हमारे पास लगेगा। अब किंडी फोर्स की डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ से करंट से लगेगा। when the current in the two parallel wires is in a opposite direction then the force is a repulsive. So this force that is repulsive in nature. repulsive कैसा रहेगा आपके पास? repulsive in nature. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। क्वेश्चंस पे आप लोगों ने ट्राई करना है इसको। सो आज के लिए बेटा आपके पास इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।